Namaskar, I am Priyadarshan. You are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Patna. So children, we are going to continue the previous part, the story which we started earlier. So let us see further what happens in the story. We have read up to when Aram and Murad, they are in a farm, and they are riding the horse. Aram has fallen down from the horse. Aram घोड़े से गिर गया है, and Murad comes to him, and thereafter what they plan to do, let us see in this slide. I am not worried about you, he shouted. वह बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा भी फिक्र नहीं. We have got to get that horse. हमें किसी तरह से उस हॉर्स को वापस लाना है. You go this way and I'll go this way. तुम उस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ. If you come upon him, और अगर तुम पहले उसके पास आते हो, be kindly, तो उस घोड़े के साथ रहम दिल से पेश आओ. I'll be near. I continued down the road and my cousin. और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाऊँगा. Murad went across the field toward the irrigation ditch. Murad irrigation ditch की तरफ, सिंचाई के नाले की तरफ दौड़ता हुआ जाता है. It took him half an hour to find the horse. उसे तकरीबन आधे घंटे लग गए उस घोड़े को ढूंढने में. All right, he said, jump on. ठीक है, अब बैठ जाओ, जल्दी करो. The whole world is awake now. पूरा संसार जग चुका है. What will you do? हम अब करेंगे क्या? I said, मैंने कहा. Well, he said, ठीक है. We shall either take him back or hide him until tomorrow morning. हम लोग इसे या तो वापस ले जाएंगे या कहीं छुपाकर अगली सुबह तक रखते हैं. He didn't sound worried. थोड़ी भी उसे फिक्र नहीं थी, जरा सा भी वो फिक्रमंद नहीं था, थोड़ी भी उसे चिंता नहीं थी. And I knew he would hide him and not take him back. और मुझे पूरा यकीन था, मालूम था कि यह घोड़े को वापस नहीं ले जाएगा, जरूर कहीं न कहीं छुपा रखेगा. Not for a while at any rate. वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं. So this is how after the first ride, Aram and Murad, they decide to hide the horse. They take the horse for a right place for the purpose of hiding, and the next thing we shall see in the coming slide, in the coming paragraph. So yeah. So where will you hide him? This is what Aram asks. So बच्चों, आप ये देख रहे होंगे कि आराम बार बार सवाल करता है. बहुत ही क्यूरियस लड़का है. वह पूछता है कि where will you hide him? हम उसे आखिर छुपाएंगे कहाँ? I said, आराम ने बोला, I know a place. मुझे वो जगह भी मालूम है. He said, how long ago did you steal this horse? इस घोड़े को तुमने कितने पहले कब चुराए थे? I said, मैंने कहा. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया था. आराम कहता है, यह आज सुबह से ही नहीं, बहुत पहले से ही घुड़सवारी कर रहा है. और चूँकि आज सुबह मेरे पास यह आया सिर्फ इसलिए कि इसे मालूम है कि मेरी भी लालसा बचपन की लालसा है कि मैं भी घुड़सवारी करूं. Who said anything about stealing a horse? किसने बोला कि मैंने हॉर्स या घोड़े की चोरी करने के बारे में किसने बोला? He said, उसने कहा. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? कब से आप तड़के सुबह सवेरे सवेरे कितने दिनों से आप घुड़सवारी कर रहे हैं? So in this paragraph, children, what we learned or what we studied, the paragraph now is in the question answer format. Aram is very curious to know. Aram is curious to know that from which date or for how long Murad is riding this horse. He also wants to know, it is confirmed that he has not stolen it, but Aram is quite sure, he is quite certain that Murad has been riding this horse for a quite long time. तो आराम को इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मुराद यह घुड़सवारी काफ़ी दिनों से या काफ़ी पहले से कर रहा है. आज सुबह वह मेरे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसको मालूम है
कि मेरे भी यह बचपन की लालसा थी। लॉन्गिंग का मतलब लालसा है, अ वेरी बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग। मैं भी उसको लिख देता तो उस लालसा को पूरी करने के लिए मुराद उसके पास आता है। सो द वन वर्ड इज longing, no? A burning desire for something. A burning desire for किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, तो हम इसे तीव्र लालसा लिख दें। So Aram says that no, Murad was well aware with my longing, the longing of riding a horse, and therefore he came to me this morning. But he was quite sure, he was quite certain that Murad had been riding the horse for quite a long time. So दोनों भाई में सवाल जवाब होता है। आराम मुराद से सवाल करता है कि भाई तुम कितने दिनों से घुड़सवारी कर रहे हो, क्या तुमने घोड़े को चुराया तो नहीं? तो मुराद हर बात से इनकार करता है और देखते हैं आगे क्या होता है। Not until this morning, he said. उसने कहा आज सुबह से तो नहीं। Are you telling the truth? क्या तुम सच कह रहे हो? और बच्चे इस सेंटेंस को ज़रा देखें कि बालपन में, बचपन में जब दो बच्चे आपस में बात करते हैं तो कितनी मासूमियत सी होती है, कितनी जल्दी जल्दी सवाल जवाब एक दूसरे से करते हैं। सो नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, मुराद भी कहते हैं कि ये बात सच है कि आज सुबह से तो नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, मैंने कहा तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। जब देखें इनोसेंसी को देखें, मुराद आंसर देता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, मतलब इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सच नहीं कह रहा है। He said, but if we are found out, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हम पकड़े गए, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हों या हम दोनों झूठ बोले, मैं नहीं चाहता। All you know is that we started riding this morning. तुमको सिर्फ ये मालूम है कि आज सुबह से ही हमने राइडिंग शुरू किया है। All right, I said, मैंने कहा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. और उसके बाद he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. एक खलिहान की तरफ, एक खेत की तरफ जो अब deserted है, मतलब जिसमें अब खेती नहीं हो रही है, उस vineyard की तरफ, अंगूर के बाग की तरफ उस घोड़े को ये बच्चे ले जाते हैं। और वह फार्म जिस आदमी का था उसका नाम था फेटवेजियन। तो फेटवेजियन के त्यक्त फार्म की तरफ आराम और मुराद उस घोड़े को लेकर जाते हैं। देयर वर सम ओट्स, ओट जौ को बोलते हैं। तो देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा। अल्फाल्फा एक लेगुमिनस सीड होता है, एक प्लांट है जिसमें फूल भी होते हैं, और अगर इसी को कहें तो ये अपने भारत में नहीं होता है इसकी खेती, लेकिन ये जो मटर है उसी प्रजाति का पौधा है। सो देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। तो उस खेत में कुछ ओट्स थे, कुछ जौ थे, और ड्राई सूखे अल्फाल्फा के प्लांट थे। वी बिगैन वॉकिंग होम, और वहाँ घोड़े को रखकर हम फिर घर की तरफ चलते हैं। इट वॉजंट ईजी ही सेड, वह कहता है यह आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े के टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, नहीं घोड़ा इतना बेहतर व्यवहार करे, इस या घोड़े को ऐसा बनाना कोई आसान खेल नहीं था, कोई आसान सी बात नहीं थी। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहली दफ़ा तो बिल्कुल वाइल्ड दौड़ना चाह रहा था, मतलब कंट्रोल से बाहर दौड़ना चाह रहा था, अनियंत्रित रूप से दौड़ना चाह रहा था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स,
This phrase has again repeated, isn't it? As I told you in the beginning, no? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यह फ्रेज बार बार रिपीट होता है. तो as I have told you, I have a way with horse. घोड़ों से अपना पुराना वास्ता है. I can get it to want to do anything I want it to do. मुराद कहता है कि मैं जो भी चाहूँगा घोड़े से करवाना वह घोड़ा करेगा, या वैसा मैं करवा सकता हूँ. Horses understand me. घोड़ों को मेरी समझ है, वो मुझे बखूबी समझते हैं. How do you do it? तुम ये कैसे करते हो? अब see how curious the question is. यह कितना क्यूरियस है ना, कितना उत्सुक सवाल है कि आराम यह कहता है कि तुम इसे कैसे करते हो. So this kind of question can be put only by a small child, you know, by an innocent child. एक मासूम बच्चा ही इस तरह का सवाल कर सकता है कि how do you do it? तुम इसे कैसे करते हो? I said, I have an understanding with a horse. मुझे घोड़ों की समझ है. He said, yes, but what sort of understanding? लेकिन किस प्रकार की समझ है मुझे ये नहीं पता चलता है. ये आराम की जिज्ञासा है, यह उसका कौतूहल है. Or you can say this is the desire, a burning desire. Aram also longs to know, no, that how Murad is managing this horse. आराम में एक ये भी ललक है, ये बहुत जिज्ञासा है, बहुत मजबूत जिज्ञासा है कि आखिर मुराद घोड़ों के साथ कैसे ऐसा कर लेता है. Yeah. So yes, no. But what sort of understanding? I said, a simple and honest one. मुराद कहता है बहुत साधारण और ईमानदारी से भरा. He said, well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. वो कहता है मुझे पता चल गया. नहीं है, वो बोलता है कि I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि घोड़ों के साथ इस तरह की समझ कैसे विकसित किया जाए. You are still a small boy. He said, मुराद कहता है अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो, छोटे से लड़के हो. When you get to be 13, you'll know how to do it. और जब तुम 13 साल के हो जाओगे मेरे जैसे, तो तुमको पता चल जाएगा कि इसे कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाए. I went home and ate a hearty breakfast. हम दोनों घर जाते हैं और एक बहुत शानदार ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं. So again, in this paragraph is also in a dialogue form. No, there is a dialogue. There is a conversation between Aram and Murad. Aram, as I said in other paragraphs, that he is very curious all the time. He wants to know so many things. No, and Murad, though he is also not so old, he is also quite young, hardly a 13 years old boy. सिर्फ 13 साल महज उसकी उम्र है, लेकिन वो इस बात को पूरा शो करता है, पूरा दिखाता है कि वो बड़ा भाई है, आराम छोटा भाई है, आराम को बहुत सी बातों की समझ नहीं है, मैं समझता हूँ. और वह यह भी कहता है कि आराम को कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे मेरे जैसे, तुम भी सब बात समझने लगोगे. So how interesting it is. See the next paragraph. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर को मेरे चाचा खसरो, बच्चों मैंने खसरो के बारे में पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ कि which kind of person he was. He was also a very special kind of person, isn't it? A big body, the longest mustache in the valley, no? And of course he was also a crazy person. So that afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर को मेरे चाचा खसरो मेरे घर आए, हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. He sat in the parlor. बैठक में वो बैठे, sipping and smoking. वो कॉफ़ी पी भी रहे थे और स्मोक भी कर रहे थे, धूम्रपान भी कर रहे थे. And remembering the old country, और जहाँ हम लोग पुराने कंट्री में, पुरानी जगहों पर जहाँ रहते थे, उसको याद भी कर रहे थे या उसकी बातें कर रहे होंगे. Then another visitor arrived. ठीक उनके बाद एक दूसरा विजिटर, एक दूसरा दर्शक वो आते हैं, ये एक दूसरा अतिथि आते हैं. A farmer, वो एक किसान है और उनका नाम है named John Byro, और उनका नाम John Byro है. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian.
और वो असीरिया के रहने वाले हैं मूल रूप से, who out of loneliness, जो अकेले होने की वजह से had learned to speak Armenian। तो क्योंकि वो अकेले थे और अकेले होने से आर्मेनिया के लोगों से उनका ताल्लुकात उनको बढ़ाना पड़ा, आर्मेनिया के लोगों से, वहाँ की कल्चर से। तो इसलिए अकेलेपन की वजह से वो आर्मेनियन सीख के बोलना नहीं, तो अकेलेपन ने उन्हें आर्मेनियन भाषा सीखने को मजबूर कर दिया। क्लियर है? माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। मेरी माँ उस अकेले अतिथि के लिए कॉफ़ी और टोबैको लाती है, कॉफ़ी और सिगरेट लाती है। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और सिगरेट को वो मोड़ते हैं, रोल करते हैं। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और फिर कॉफ़ी पीते हैं और धूम्रपान करते हैं। एंड देन एट लास्ट, और फिर आखिरी में, शाइंग सैडली, उदासी भरे लहजे में वो कहते हैं, ही सेड, माई वाइट हॉर्स which was stolen last month is still gone and I can't understand it। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने जिसकी चोरी हो गई थी अभी तक गायब है, मुझे मिली नहीं। No? So the two boys, they also came to have breakfast at home. They took the breakfast, as they mentioned that we had hearty breakfast, बहुत शानदार ब्रेकफास्ट खाए उन लोगों ने। उसके बाद उसके चाचा आते हैं, खुसरो आते हैं, एंड ही ऑल्सो सिप्ड कॉफ़ी, स्मोक्ड सिगारेट्स, नैरेटेड अबाउट द ओल्ड कंट्री, पुराने जहाँ लोग पहले रहते थे, पुरानी जगहों पर रहते थे, ओल्ड कंट्री के बारे में बात करते हैं। और वहाँ एक तीसरा अतिथि भी आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आहत भी है। दैट थर्ड विजिटर बच्चों बहुत आहत है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जॉन बायरो। सो दिस इज नो John Byro is the person, he is the man whose horse has been stolen and it was stolen almost a month ago। यह जॉन बायरो ही हैं जिनकी सफ़ेद घोड़े की चोरी हो गई, और चोरी कोई 1-2 दिन पहले नहीं, महीने पहले हुआ, 1 महीना पहले हुआ। और वो जॉन बायरो बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं कि इट हैज़ बीन स्टोलन अ मंथ एगो एंड स्टिल आई कुडंट फाइंड इट। और अभी भी वह उस घोड़े को प्राप्त नहीं किए, अभी भी वह घोड़ा उनको नहीं मिला है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, अ न्यू in fact introduction of characters in the story. Khusro, already we have learned about Khusro, but John Byro is of course the new character in this slide. So we shall know more about Khusro and John Byro. So my uncle Khusro became very irritated, और बहुत ज़्यादा चिढ़ से गए थे। मेरे चाचा खुसरो बहुत चिढ़े हुए थे। एंड साउटेड, और ज़ोर से बोले, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स। इसमें कोई नुकसान नहीं है, घोड़ा खो गया तो क्या खो गया। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपने घर बार नहीं खोए। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और घोड़े पर इस तरह का विलाप करना, इसका क्या मतलब है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, a city dweller to say, John Byro said। जॉन बायरो कहता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप शहर के वासिंदे हैं, आप एक शहरी इंसान हैं, आप शहर में रहते हैं, घोड़ों से आपका क्या लेना देना। बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी के लिए क्या। ये जो सरी है इसको बग्गी आप कह सकते हैं, एक हॉर्स कैरेज होता है तो उसे सरी बोलते हैं, SURREY। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम राइटिंग द टर्म। या सो बट व्हाट अबाउट माई सरी, लेकिन मेरी बग्गी का क्या। व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट ए हॉर्स, बगैर घोड़े का बग्गी का क्या करना है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरा चाचा खुसरो दहाड़ कर बोला, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहते हैं मैं 10 मील चल कर यहाँ आया यह कहने के लिए। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो फिर से चीखते हैं। या सो वो अपनी चीख में फिर क्या कहते हैं, नए स्लाइड में देखते हैं। अंकल खुसरो या जॉन बायरो कहते हैं
माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरी बाईं पैर में दर्द भी है। 10 मील से मैं चलकर भी आया हूँ, बगैर घोड़े का बग्गी का मैं क्या करूँगा। द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट। माय अंकल खुसरो रोड, चाचा खुसरो फिर गुर्रा कर धार कर बोलते, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो किसान कहता है, $60 कीमत अदा करके मैंने इस घोड़े को खरीदा है। आई स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड। खुसरो कहता है, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। वो उठता है और घर से बाहर चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को ठोकर मारते हुए, माय मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ कही, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, वह बड़ा ही रहम दिल का इंसान है। शी सेड, वह कही, इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बात वजह सिर्फ यह है कि वह होम सिक है, घर से उसको बेइंतहा लगाव है और इतना बड़ा आदमी है। द फार्मर हु वेंट अवे, वह किसान वापस जाता है। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर की तरफ दौड़ता हूँ। तो here there is a very curious interaction between John Byro and Uncle Khusro, no? So, because it is the lingua franca of Uncle Khusro to say on each and every topic, don't pay attention to it. But John Byro, he explains his entire situation. No? So let us see the next slide. He was sitting under a peach tree. तो जब आराम दौड़ कर मुराद से मिलने, क्योंकि उसने बहुत सारी बातों की जानकारी इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारी बातें सुन लिया है कि खुसरो और जॉन बायरो में क्या बातचीत हो रही थी, उसे रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े वो मुराद के घर जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह बड़े आराम से एक पीच ट्री के नीचे मुराद बैठा होता है। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन व्हिच कुडंट फ्लाई, और आराम से बैठकर एक यंग रोबिन, एक चिड़िया है जिसे काली चिड़ी बोलते हैं इंडिया में, तो लेकिन वहाँ इसके रंग हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, और वहाँ जो आर्मेनिया का रोबिन है उसका चेस्ट लाल होता है, रेड कलर का होता है चेस्ट। तो वह घायल रोबिन था, वह उड़ने में नाकाम था। तो मुराद उस पीच पेड़ के नीचे बैठकर उस घायल काली चिड़ी को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, मानो ऐसा कि वह चिड़िया से बात कर रहा हो। व्हाट इज इट, ही सेड। और जब मैं पहुंचा तो उसने बोला, क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने सिर्फ इतना कहा, किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वह आज हमारे घर पधारे थे। ही वांट्स हिज हॉर्स, उन्हें उनका घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और आप इसे 1 महीने से रखे हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक until I learn to write, लेकिन मैं आपको आपके द्वारा किए हुए वादे उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं सीख नहीं लूँगा आप इस घोड़े को वापस नहीं देंगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. मेरा चचेरा भाई मुराद कहता है, भाई तुमको 1 वर्ष लग जाएंगे सीखने में। We could keep the horse a year, I said. मैंने कहा तो 1 साल रखेंगे। My cousin मुराद leapt to his feet, और मेरा भाई पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। Yeah, so quite a fascinating talk, no, interesting talk between 2 children. That Aram says that he wants to remind Murad because he heard all the story, but still now it is his longing also to learn how to ride a horse. So he tells Murad that I am reminding the promise which you made to me that you will not return the horse until I learn how to ride it. But Murad says that it will take a year. Then Aram says, so be it. तो दोनों में बातचीत होती है और आराम कहता है कि 1 साल अगर सीखने में लगता है तो हम भी उसे 1 साल रखेंगे। सो व्हाट ही रोड, वह जोर से बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम चोरी का आमंत्रण दे रहे हो एक गार्गोलेनियन परिवार के सदस्य को? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। मुराद कहता है कि हॉर्स या घोड़ा जिसका है
उसे वापस जाना चाहिए। जो इसका सच्चा मालिक है उसके पास वापस जाना चाहिए। When I said, मैंने कहा कब? In 6 months at the latest, he said, वह कहा कम से कम 6 महीने में वापस जाना चाहिए। He threw the bird into the air. He threw the bird into the air like this. The bird tried hard. वह पक्षी को हवा में उछाल देता है। पक्षी पूरी कोशिश करती है। Almost fell twice. 2 बार वह चिड़िया गिरती है। But at last flew away. लेकिन आखिरकार उड़ जाती है। High and straight. बिल्कुल ऊंचे सीधे आसमान में। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. उसके बाद 1 सप्ताह हम दोनों भाई उस घोड़े को ले जाते कंट्री साइड में। वो तो खूब चलाता, मुराद बहुत बेहतरीन ढंग से हॉर्स राइडिंग करता, लेकिन जब मेरी बारी आती तो हर बार घोड़ा उछलता और मुझे गिरा देता। So this was the simple conversation between 2 brothers. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless, despite of it, however, फिर भी I hoped in time, तो ये आराम कह रहा है कि मुराद जिस तरह से घोड़ा चलाता है उसकी भी ख्वाहिश है, उसकी भी तमन्ना है कि वो भी उसी ढंग से चलाए। One morning on the way to Fatbajan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों फैटबैजन के डेजर्टेड विनयार्ड से गुजर रहे थे। मतलब जो अंगूर के बाग थे जिसका मालिक फैटबैजन थे, उसी बाग से जब ये लोग गुजर रहे थे तो उधर से जॉन बायरो आते हुए दिखता है। Yes, John Byro was on his way to town. Let me do the talking. My cousin Murad said. मेरा भाई मुराद कहता है मुझे बात करने दो। I have a way with farmers. मेरे किसानों से भी पुराने ताल्लुकात हैं, पुराना वास्ता है, मैं उनको अच्छी तरह समझता हूँ। Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. मेरा भाई मुराद गुड मॉर्निंग करता है जॉन बायरो को। The farmer studied the horse eagerly. बड़े ही उत्सुक होकर वो किसान उस हॉर्स को देखता है। So, good morning, son of my friends. जब मुराद जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग करता है तो जॉन बायरो भी बोलता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बच्चे तुमको भी गुड मॉर्निंग। ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। वह भी घोड़ा देखता है और पूछता है, ज़रा देखें यहाँ कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी का कितना सिग्निफिकेंस है, विश्वास और ईमान का कितना कीमत है, इस कीमत पर गौर करें। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। जॉन बायरो पूछता है तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, जबकि यह घोड़ा उसी का है। मुराद जवाब देता है माई हार्ट, मेरा दिल। माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन में मेरा भाई मुराद कहता है माई हार्ट। अ लवली नेम, बहुत खूबसूरत नाम। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो कहता है फॉर ए लवली हॉर्स, एक खूबसूरत घोड़े का खूबसूरत नाम। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। उसके बाद जॉन बायरो कहता है मैं कसम खा के कह सकता हूँ कई सप्ताह पहले जिस घोड़े की चोरी हुई थी मेरे फार्म से, ये वही घोड़ा है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। इनफैक्ट घोड़े के दांत को गिना जाता है, परखा जाता है। So of course, मुराद ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जरूर देखें। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर उस घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत को गिनता है। He said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह घोड़ा मेरा ही है। ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो इसका मतलब यह है कि वो लोग इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे थे कि पहचानने के बावजूद भी उसे यह यकीन नहीं हो रहा है कि उसके दोस्त के बच्चों ने घोड़े को चुराया होगा। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी।
तो तुम्हारे परिवार की ईमानदारी बिल्कुल प्रसिद्ध है, मैं जानता हूँ। इट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी हो सकता है कि जुर्मा घोड़ा रहा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक सस्पिशियस आदमी, एक शंकालु प्रवृत्ति का आदमी अपनी आँखों पर यकीन करेगा, न कि दिल पर। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त। सो दिस इज हाउ we studied in this paragraph, that there is an encounter, very interesting encounter between Murad and John Byro, the owner of the horse. John Byro recognizes his horse, but still he recognizes more the honesty, sincerity, integrity, of the Gargolenian family, and that's why he doubts his own eyes. इसलिए उसे अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं। वो कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त के बच्चे नहीं होते तो मैं कह सकता था कि यह घोड़ा मेरा ही है। So this is the cost, this is the value in fact of honesty, sincerity and integrity which we came to know in this paragraph. Good day, John Byro, my cousin Murad said. Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else hiss it. I have a way with dogs. यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुराद कहता है जब वो फिर से घोड़े को जॉन बायरो के घर वापस करने के लिए जाते हैं, छुप कर जाते हैं, तड़के सुबह जाते हैं, बिल्कुल सवेरे सवेरे जाते हैं, तो वो कहता है कि वहाँ बहुत सारे कुत्ते भी हैं। तो आराम कुत्ते से घबराता है, लेकिन मुराद समझाता है कि मेरे कुत्ते से भी अच्छे खासे वास्ते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और घोड़े के गले में मेरा भाई हाथ डालता है। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। उसके नाकों में हाथ डालता है, उसे थपथपाता है और हम वहाँ से चले जाते हैं। So fascinating, yeah. Let us see the next part of the story. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen in return. उसी दोपहर को जॉन बायरो मेरे घर आता है, इन हिज सरे, अपनी बग्गी में आता है। इस बार वो चल कर नहीं आता है। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन, और मेरी माँ को उस घोड़े से मुलाकात करवाता है, दिखाता है जिसकी चोरी हो गई थी और जो वापस हो गया था, उसे मिल भी गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं क्या सोचूं, क्या कहूँ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यह घोड़ा पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, बलशाली हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू, इसका मिजाज भी काफ़ी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खसरो, उसके अंकल चाचा खसरो भी वहीं बैठे हुए थे। हु वाज इन द पार्लर, बैठक में बैठे हुए थे। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो गए और चीखा उन्हें, क्वाइट मैन, चुप रहो, क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारे घोड़े वापस हो गए, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दो। सो चिल्ड्रन, वी हैव रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So there is one question which is very often asked from this chapter. The question is, did the boys return the horse because they were fear stricken, that kind of question, or they were conscience stricken? सवाल ये है कि बच्चों ने उस घोड़े को फिर से वापस कर दिया, कहीं इसकी वजह से नहीं कि वो लोग कंसेंस स्ट्रिकन थे, मतलब सजग चेतना के थे और उनको लग रहा था कि इट्स अ बैड थिंग, इसलिए घोड़े को वापस कर दिया. इट्स ट्रू, द चिल्ड्रन, though they were quite small and they had also a childhood longing for riding a horse, बाल्यकाल से ही उनमें एक ललक थी घोड़े चलाने की, हॉर्स राइड करने की, घुड़सवारी करने की. But they were really very conscience stricken. They were knowing the limit of the things and they never thought just to steal the horse. Just out of no curiosity, they took the horse, they stole it from there and enjoyed it for some time and return it within a month or after a month. So we can say, of course, despite of being small children, Aram and Murad were certainly conscience stricken. हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कहानी के आधार पर, कहानी पढ़ने के बाद, कि दोनों की चेतना, दोनों बच्चों की चेतना जागृत थी. दोनों हर बात अच्छा बुरा को समझते थे, क्या सही है क्या गलत है, और बच्चे भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ थे कि उनके ट्राइब में, उनकी जनजाति में, गार्गोलेनियन फैमिली में कोई चोर नहीं हो सकता है. सो चिल्ड्रन, इट वाज रियली
you must have understood, you must have enjoyed the story, as I can hope, and because it's a very normal sort of things. The story is not that much adventurous, but you can relate it. Each and every child can relate it with their childhood incidents. They can find a kind of similarity in the story, so they can relate with them quite easily. So बच्चे, इस कहानी को आप लोग ज़रूर एंजॉय किए होंगे। काफ़ी ही रोचक कहानी है। कहानी उतना दुस्साहसिक नहीं है, लेकिन हर बच्चे की ज़िंदगी में कुछ न कुछ इस ढंग की बातें होती है जो काफ़ी आनंददायक होती है। तो हम सब ने, we all have enjoyed this story, we have read this story, I have also explained the answer questions. Hopefully you must have enjoyed the story, understood it quite completely, and hopefully with some new interesting story, with some other poem or story, we shall meet in the next episode. Till then, goodbye. Take care of your home, health and family. Namaskar.